My dear respected students, good morning to all of you. And today I am just begin with the concept of structured query language, which is also to be pronounced as a SQL. I'm just going to elaborate some of the advantages of MySQL, or you can also call it as a MySQL. Where is a classification of MySQL and two important topics, that is DDL and DML. मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करने से पहले अगर कोई भी बच्चा मुझे हैंड रेज करके बता दे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DDL एंड DML। पहले हम DDL की बात करेंगे। जिसको आता है कृपया करके हैंड रेज करने की कृपालता करे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अभी तक मुझे किसी का हाथ खड़ा नजर नहीं आया। DDL और DML मेरे प्यारे बच्चों, DML। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है क्या बात है। चलिए जी, एक बार स्टार्ट करता हूं बनमीत से। बनमीत, मेरी आवाज आ रही है आप तक? यस सर। मेरा बेटा DDL की फुल फॉर्म बता दे। DML की पता है। DML की, चल DML की बता दे, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अच्छा, इसीलिए फिर किसी ने पहले हाथ नहीं खड़ा किया था जब हमने DDL की बात की। चलिए, अब थैंक यू वेरी मच बनमीत जी, गॉड ब्लेस यू। पर मैं ना एक बच्चे से पूछूंगा जरूर। तनीषा, हैंड रेस तो हो गया था, अब डाउन भी हो गया है। एक बार अगर मेरी आवाज आ रही है कवलजीत सर की, तो DDL की फुल फॉर्म वैसे ही गेस लगा दे, कोई बात नहीं। नहीं पता सर। चल कोई बात नहीं, हम बाद में जब करेंगे ना तो फिर एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है मेरा बेटा, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। माय डियर रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, kindly concentrate here that today we are just begin with the overview of SQL and MySQL। मेरे बच्चों, बिल्कुल सरल शब्दों में आपके समक्ष जो विचार रखने जा रहा हूं वो दो चीजें हैं। देयर इज टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट, one is to be called as a SQL and second is to be called as a MySQL। मेरे बच्चों, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये दोनों चीजें हैं क्या। मेरे प्यारे बच्चों, MySQL और MySQL is a kind of software, or we can call it as a software, and if you want to interact with that particular software, the language which is being supported by the database or the software, that is a MySQL, is to be called as a SQL, where my dear student, SQL stands for a structured query language। मेरे बच्चों जरा ध्यान से सुनिएगा कवलजीत सर की बात को। SQL, as I have discussed already, that is a structured query language. This is used for assessing and manipulating database। इसका मतलब है आप कोई डाटा बीच में डालना चाहते हैं, आप कुछ रिट्रीव करना चाहते हैं, that can be done only with the help of a language। उस भाषा का प्रयोग करेंगे जो MySQL को समझ आती हो, और MySQL को जो समझ आता है that is a SQL, structured query language। My dear respected student, as we have already done many practicals on that particular software, they said that we can create, we can transform, we can retrieve information from RDBMS। बेटा यहाँ पे एक बात जरा ध्यान से सुनने वाली है मेरे प्यारे शिष्यों। बिफोर दैट वी हैव डिस्कस्ड अ वर्ड दैट इज अ DBMS, which is to be called as a database management system। But now here it is, we are talking about the concept of RDBMS, where R stands for relational database management system। It says that relation, in context of SQL and MySQL, relation mean a table। अगर मैं आपसे बोलूं what do you understand by a relation, you directly say to me that sir, relation is as similar as table।
It means in RDBMS, we are supposed to work with a data in the form of tables, which is there reside in the database. My dear respected students, if you want to get information, we are supposed to interact with the database. How we can interact? We can interact with the help of different commands which is there in a SQL, that is a structured query language. Again, they say that we can perform many operations, creating table, inserting or adding records, modifying, removing, dropping tables and deleting tables. मेरे बेटा यहाँ पे एक शब्द बहुत गौर से सुनने वाला है, डिलीटिंग एंड ड्रॉपिंग। मेरे प्यारे बच्चों, अभी सिर्फ आपको सरल भाषा में उसका अनुवाद बताऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, डिलीट इज अ थिंग वेयर वी आर सपोज टू डिलीट द डाटा फ्रॉम अ टेबल, बट द स्ट्रक्चर और स्कीमा ऑफ द टेबल इज एज इट इज। But when we are supposed to drop a table, they said that they delete both things, whether it is a data or whether it is a structure or schema. मेरे प्यारे बच्चों, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपके लिए ये है कि मेरे बच्चों मुझे गाइड कर देना, what do you understand by SQL and MySQL? जिसको भी आता हो वो हैंड रेज करने की कृपालता करे। वेरी गुड, एक मेरा स्टार, दूसरा स्टार, दूसरा, तीसरा स्टार, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, केशव जी भी आए हैं, मेरे फेवरेट। अरे वाह यार, मजा आ गया। केशव, मैं ना आपसे बात करना चाहता हूँ। केशव जी एक बार आइएगा प्लीज, बहुत इच्छा है आपसे वार्तालाप करने की। वेरी गुड, बोलिए जी। केशव केशव केशव, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, माफी चाहता हूँ, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे प्रॉपरली। अमन जी आप बोलेंगे प्लीज, एक बार चेक कर लूं आपको। वेरी गुड, अमन जी बोलिए। सर जो माई एसक्यूएल है सर, वो एक सॉफ्टवेयर है जिसमें जो लैंग्वेज यूज होती है वो एसक्यूएल लैंग्वेज यूज होती है, जो डाटाबेस के लिए हम जो यूज करते डाटाबेस हैं। में से डाटा को रिट्रीव या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होती है। मैं अमन जी एक और आपके चरणों में विनम्र विनती थी कि एसक्यूएल की फुल फॉर्म बता सकते हैं साहब आप? सर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच अमन जी। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन है, सुन लीजिएगा प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। माय डियर रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, काइंडली टेल मी द डिफरेंस इन बिटवीन डिलीट एंड ड्रॉप। जिसको भी पता है वो कृपया करके हैंड रेज करने की कृपालता करे। डिलीट एंड ड्रॉप, वेरी गुड, क्या बात है। चाना साहब भी आ गए। चाना साहब जरा अगर आपकी कनेक्टिविटी ठीक है तो कृपया करके अनम्यूट करेंगे अपने आप को। जस्ट टेल मी द इंफॉर्मेशन दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ डिलीट एंड ड्रॉप। जी सर, डिलीट का मतलब कि अगर हम हमारे टेबल में कोई डाटा एंटर्ड या स्टोर्ड है, वेरी गुड, हम उसे डिलीट कर दें। और ड्रॉप करने का मतलब कि टेबल में जो डाटा है उसके साथ साथ वो जो टेबल का स्ट्रक्चर है वो भी डिलीट हो जाएगा, वो ड्रॉप हो जाएगा इन द सेंस। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, धन्यवाद गुरलीन जी, आज बहुत अच्छी कनेक्टिविटी थी और मुझे आपके शब्द जो हैं एक एक शब्द सुनाई दिया। थैंक यू वेरी मच। और होपफुली कंसीडर करके चल रहा हूं कि आपको माईएसक्यूएल और एसक्यूएल के बीच में और डिलीट एंड ड्रॉप जो अभी तक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सरलता से समझ आ गए। मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट थिंग व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इज द एडवांटेजेस ऑफ माईएसक्यूएल। कृपया करके ध्यान से सुनने की कृपालता कीजिए, एक एक चीज को कोशिश करूंगा आप तक पहुंचाने की। सबसे पहले लिखा हुआ है ईज ऑफ यूज। इसका मतलब क्या है? अगर सरल शब्दों में इसको बोले दैट दिस इज अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर विच इज वेरी 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 इजी टू यूज, but they provides a facility here. My dear respected students, kindly concentrate, it's my humble request. They said that they provide this MySQL software provides you a facility that whether you can perform the operation on the basis of command line,
सर कमांड लाइन क्या होता है ये तो बता दो। ओके बताता हूं। नेक्स्ट, दे कैन ऑल्सो प्रोवाइड्स यू अ फैसिलिटी दैट इन अ GUI, that is a graphical user interface, you can also perform the same thing. सर आपकी बात मुझे समझ नहीं आई, सॉरी सर मेरे को माफ कर दीजिएगा, मुझसे गलती हो गई, अभी बता देता हूं। कहता सर बता दीजिए। कहता क्या कमांड लाइन क्या होता है सर ये तो बता दो। कहता ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको ब्लैक कलर की? सर आ रही है। सर यहाँ पे मैंने लिखा यूज अमन। कहता ठीक है सर ये तो पहले भी लिखा था। बेटा अब बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, अगर आप इसके टाइटल बार में चेक करें तो वहां लिखा हुआ है MySQL 8.0 कमांड लाइन। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो भी कार्य होगा वो आप टाइप करेंगे, कोई भी ग्राफिकल इंटरफेस आपको कार्य करने के लिए उपलब्ध नहीं होगा। जैसे मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। बेटा जी कृपया करके म्यूट कर लीजिएगा, आपके चरणों में विनम्र विनती। अच्छा अध्यापक हैं, अध्यापक कोई बात नहीं। अब कमांड लाइन के बाद आप बोलेंगे सर ये कमांड लाइन तो चलो हमें समझ आ गई। कहते ठीक है सर कृपया करके हमें ये भी बता दीजिए GUI कहाँ पे है? GUI तो आपने आज तक नहीं बताया। कहते सर ये देखिएगा ध्यान से, ऑल प्रोग्राम पे क्लिक किया सर कर दिया। सर मैंने MySQL पे क्लिक किया सर कर दिया। सर यहाँ लिखा है MySQL वर्कबेंच 8.0 CE, सर क्लिक कर दीजिए। सर कर दिया। सर ये क्या आया स्क्रीन पे? बेटा ये है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मैंने जैसे ही यहाँ लोकल इंस्टेंस पे क्लिक किया उसने SQL को ओपन करना स्टार्ट किया और मुझसे मांगा पासवर्ड और बता दिया कि यूजर का नाम क्या है, रूट। मैंने लिखा पासवर्ड नहीं बताऊंगा, मैंने पासवर्ड लिखा एंड आई एम जस्ट गोइंग टू हिट द एंटर की। अब आप बोलेंगे सर वेरी गुड, ये तो आपको जो हमें नजर आ रहा है दैट इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब हम कार्य क्या कर सकते हैं? कहते सर देखिएगा अब आप क्या कर रहे हैं, हम इस चीज को अगर मैं आपको बताऊं और मैं यहाँ लिखूं, ये देखिए लिखा हुआ है डाटा एक्सपोर्ट। मैंने यहाँ पे डाटा एक्सपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक किया, ये देखिए अब पहले वहां मुझे लिखना पड़ रहा था कि आप डाटा दिखाएं, शो डाटा बेसिस। अब मुझे यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं, मेरे पास ये डाटा बेसिस आ गए। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू व्यू द कवर, आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक हियर, द टेबल विच इज देयर इन दैट द पर्टिकुलर डाटाबेस इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड। I am just going to click on Aman. The data which is there in a database is supposed to be reflected here. इसका मतलब है अगर आप किसी भी तरीके की कोई भी कार्रवाई, जैसे अगर मैं आपको बोलूं मैंने लिखा यूज अमन, अब मुझे एंटर हिट करने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट वाली कमांड पे जैसे करूंगा ये देखिए बॉटम पे आ गया कि अमन इज एक्टिव। अब मैंने कहा सेलेक्ट स्टार from, I am just going to mention select star from and I am just going to mention teacher there is a 6 semicolon and again there is a executing, here it is, the data within that particular table is supposed to be displayed on the screen. मेरे प्यारे बच्चों, जिन मेरे शिष्यों को मेरी ये बात समझ आ गई है वो कृपया करके हैंड रेज करने की कृपालता करें। वेरी गुड वेरी गुड। इसका मतलब आज जब मैं घर पे एसक्यूएल करूंगा तो मैं कमांड लाइन से भी ट्राई करूंगा और मैं किससे ट्राई कर सकता हूं, मैं जो मेरे पास GUI है दैट इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मैं उसको भी सेम कार्य करने के लिए प्रयोग में ला सकता हूं। मेरे प्यारे बच्चों बहुत धन्यवाद आपका हैंड रेज करने के लिए। सेकेंड पॉइंट वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इज नो कोड रिक्वायर्ड। मेरे प्यारे बच्चों जैसे हम पाइथन में कोडिंग लिखते हैं, बहुत सारे प्रोसीडर्स बनाते हैं, बहुत सारे फंक्शंस का क्रिएशन करते हैं, यहाँ पे इस प्रकार की कोई भी फंक्शंस या किसी कोड को लिखने की आवश्यकता नहीं। आप सरलता से कोई भी कमांड, जैसे हम सरल भाषा में बोलते हैं कि वो इंफॉर्मेशन दिखा दीजिए जिसमें क्लास
+2 है. Same way we are supposed to mention select star from name of the table where class is equal to +2 and they are supposed to give you the information. It means there is no coding is provided. Now one of the most important thing मैं आपसे पूछना चाहूंगा इसके बारे में, जिसका भी नाम लूं वो कृपया करके एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा. हिमांशु जी. अच्छा एक सेकंड, सॉरी हिमांशु, एक मिनट म्यूट ही रखना. एक बार मुझे पहले ये बता दो कि MySQL लैपटॉप्स पे किन किन लोगों ने कर लिया है, मतलब अपनी डिवाइसेस पे, चाहे वो कुछ भी हो, डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो या कुछ भी हो. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. बहुत सारे लोगों ने. और ये सच्चाई पे चलिएगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा फिर बाद में मत कहिएगा. वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने किया है. वेरी गुड. मैं चलता हूं प्रभ के पास. प्रभ एक बार अनम्यूट करना यार अपने आप को. यस सर. प्रभ, जब तूने जो हमारा MySQL या MySQL वाला सॉफ्टवेयर है, जब तूने डाउनलोड किया था, तूने कुछ चार्जेस दिए थे उसके लिए? नो सर. कोई चार्जेस नहीं दिए थे. अच्छा, जब तुमने प्रभ जब पाइथन कभी इंस्टॉल की हो अपने सिस्टम पे, तो उसके लिए कुछ एडिशनल चार्जेस देने पड़ते हैं आपको? नो सर. नहीं देने पड़ते. थैंक यू वेरी मच. मेरे प्यारे बच्चों, कृपया करके ध्यान को इस और एकाग्रचित करने की कृपालता कीजिए. मैं अभी आपसे इसके बारे में पूछूंगा. मेरे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दैट MySQL इज अ फ्री सॉफ्टवेयर. वेरी वेरी इजी पॉइंट टू अंडरस्टैंड. Second point says that MySQL is a open source. सर इस वर्ड के बारे में बता दीजिए क्या होता है. सर open source means that you are not supposed to pay anything for a particular software, but if you want to contribute in that particular software in the form of any kind of modification, in the form of any kind of coding improvement, so you can done. Because these software are called as open source, they provide to all the users without any cost. But if you want to contribute somewhere, you can contribute easily. And here it is very important term which we are supposed to talk about, that is a LAMP. याद रख लीजिएगा, LAMP. मेरे बच्चों, अगर आपके कुछ रिलेटिव्स या अगर आपके कुछ फ्रेंड सर्कल में कुछ MNCs में, जैसे आप लोग भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो होपफुली हो सकता है कि कुछ लोग आपके भी जो ब्रदर सिस्टर हो या कजन्स हो, वो कहीं MNCs में या कहीं काम कर रहे हैं. तो आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ज्ञान थोड़ा सा एक शब्द में बताऊंगा. वी हैविंग अ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज कॉल्ड एज अ लाइनेक्स. और ये लाइनेक्स है क्या? जब आप जो हम लोग विंडो यूज कर रहे हैं, दैट इज अ पायरेटेड सॉफ्टवेयर. If we are not going to use a genuine one, so we are supposed to use a pirated software. But in MNCs and in big organizations, now they just trend begins that they are supposed to begin the operating system that is a Linux instead of using a Microsoft Windows. Whereas second point is one of the HTTP server which is called as Apache, which is also a free of cost software, whereas MySQL is again a free software, and PHP, Perl and Python is a open source software. इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं LAMP की फुल फॉर्म पूछूं, L for Linux, A for Apache, M for MySQL and P for that is PHP, that is Perl, that is Python. मेरे बच्चों को जिनको मेरी ये वाली शब्दावली समझ आई हो, वो कृपया करके हैंड रेस करिएगा. इसका मतलब है जिसको लैंप समझ आ गया हो. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. सिर्फ 3, अरे वाह. 4, अरे वाह. 5, अरे वाह. 6, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. अच्छा, अब बताएगा, पता है कौन है? ये नीचे वालों ने नहीं किया, ये शायद मुझसे गुस्से हैं. चलो इन्हीं से पूछ लेता हूं. मेरे प्यारे बच्चों, जतिन अनम्यूट कर अपने आप को. माननीय जतिन जी. सर जी जतिन, लैंप के बारे में कुछ समझ आया आपको जो कवलजीत सर ने बोला अभी? सर एम की फुल फॉर्म नहीं पता लगी, बाकी सब तू बेफिक्र हो जा, मैं तेरे साथ बैठा हूं यार, काहे घबराता है? मेरे को सबसे पहले बता, एल की फुल फॉर्म क्या होती है? सर लाइनेक्स.
वेरी गुड मेरे बेटा। ए की फुल फॉर्म बता क्या होती है? सर अपाचे। वेरी गुड। अब तेरे को एम की फुल फॉर्म नहीं पता लगी। एम तो सबसे इजी था जो हम लोग कर भी रहे हैं, दैट इज टू बी कॉल्ड एज ए माई सीक्वल। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? माई सीक्वल। माई जतिन जी सीक्वल। वेरी गुड। और आप पी की फुल फॉर्म बता दे। पी में 3 चीजें आएंगी, क्या क्या? सर PHP, वेरी पर्ल, गुड, पाइथन। वेरी गुड, ग्रेट, बहुत अच्छे। सारे हैंड डाउन कर लीजिएगा, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, हैंड डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट आइएगा जतिन जी, म्यूट कर लीजिएगा, सर ये धन्यवाद। दोबारा बताना सर, पता नहीं नॉइज बहुत है कौन सर। आया मेरा बेटा? कौन है? एक बार प्लीज नाम बता दीजिए। मेरा शिष्य, वाह, हिमांशु। मेरा फेवरेट हिमांशु। हिमांशु, हम बात कर रहे थे कॉस्ट की। मेरे बेटा मैंने ये बोला था कि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होते हैं, जिसमें अगर मैं आपको एक टर्म याद करवा दूं, उसका नाम, टर्म जो आपके ब्रेन के अंदर घुस जाएगी, टर्म मींस लैंप। आप लैंप याद रख लीजिए सिर्फ। और लैंप में लाइनेक्स आएगा, एल फॉर लाइनेक्स हिमांशु। और उसके बाद ए फॉर अपाचे आएगा बेटा, एम फॉर माई सीक्वल आएगा, और पी फॉर पीएचपी, पर्ल एंड पाइथन। ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको ओपन सोर्स मिलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। अब मेरे बच्चों को मेरी बात समझ आ गई? अच्छा, ये नेक्स्ट शब्द जो नजर आया है, दैट इज अ पोर्टेबिलिटी, दैट इज अ पोर्टेबिलिटी। मेरे बच्चों, वैसे पोर्टेबिलिटी के संदर्भ में मैं अगर आपसे विचार करूं, कहता वो सॉफ्टवेयर, द काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज कंपैटिबल विद अदर सॉफ्टवेयर्स। फॉर एग्जांपल, बिल्कुल अगर सरल एग्जांपल दूं, इजी एग्जांपल दूं, इसमें वो कहता है कि आपने पाइथन के साथ माइस्क्ल को यूज किया था एक इंटरफेस क्रिएट करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि माइस्क्ल आपको एक सुविधा प्रदान करता है कि आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के साथ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। और इसको जो सरल शब्दों में बताया जाएगा, दैट इज टू बी कॉल्ड एज अ पोर्टेबिलिटी। मतलब ये पोर्टेबल है और सॉफ्टवेयर्स के साथ इजीली वर्क कर सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, अब मेरे पास नेक्स्ट चीज आई, दैट इज अ डाटा टाइप। वो मेरे सब बच्चों को पता है कि इसके अंदर इंट भी है, इंटीजर भी है, कैरेक्टर भी है, varchar भी है, डेट भी है। देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ डाटा टाइप टू रिलेट or to work with the different types of data. We have an ample amount of data types. And the last one will be, whenever we are supposed to start MySQL, they ask for the password. It means they provide us the concept of a C key or a T. मेरे बच्चों को जिनको मेरी बात समझ आई हो, कृपया करके हैंड रेज कर दे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। रवलीन, रवलीन, प्रीत तक पहुंच गया, प्रीत तक पहुंच गया, प्रीत तक पहुंच गया, वेरी गुड। आज एक तो स्टूडेंट्स की कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मुझे लग रहा है कि नेटवर्क में ना भव का भी ऑडियो कनेक्टेड नहीं नजर आ रहा मुझे। चलिए कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल 2 मिनट लगाऊंगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट कहता कि आप किस प्रकार बांट सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं एसक्यूएल को। कहता सर अभी पता लग जाएगा। कहता किस प्रकार विभाजित करेंगे, उसके कार्य पे कि कौन सी चीज क्या कार्य करती है उसके ऊपर हम विभाजित करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे कि हम एसक्यूएल को अलग अलग प्रकार से दर्शा कैसे सकते हैं। अब मेरे बच्चों यहाँ पे ना अगर आप देखें तो एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको शेप नजर आई, या हम कह दें एक इमेज नजर आई, दैट सेज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैविंग अ DDL, दैट इज अ डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सेकंड इज अ DML, दैट इज अ डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। थर्ड इज याद रखिएगा मैं पूछूंगा इसकी फुल फॉर्म आपको, थर्ड इज अ डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। एंड फोर्थ वन TCL इज अ ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। बट आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है दैट इज ओनली DDL, दैट इज अ डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, एंड DML, दैट इज अ डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज।
बट आपके चरणों में विनम्र विनती इस प्रकार है कि कृपया करके DCL दैट इज अ डाटा कंट्रोल लैंग्वेज एंड TCL दैट इज अ ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, इनको भी याद, इनकी फुल फॉर्म को याद रखना अनिवार्य है। वेरी गुड। अब जिसका भी मैं नाम लूं वो कृपया करके मेरे साथ वार्तालाप करे। सबसे पहले मैं लवदीप को पूछ रहा हूं। लवदीप, अगर मेरी आवाज आ रही है मेरी बेटी तक तो मुझे सबसे पहले DDL की फुल फॉर्म बता दे लवदीप। DDL। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। अगर अब मेरी आवाज मेरे बच्चों तक आ रही हो, मैंने अपनी बेटी से आज बात नहीं की, बनमीत से, बनमीत अगर मेरी आवाज आ रही हो तो TCL की फुल फॉर्म बता दे। बनमीत, अच्छा घबराना नहीं है कि हमें नहीं आता, ऐसे नहीं करना, घबराना नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूं आपको। TCL की फुल फॉर्म बताइए। बनमीत जी को मुझे लगता है कि शायद नहीं आती। जिसको आती है TCL की फुल फॉर्म हैंड रेज करिएगा। वेरी गुड। अमन, अमन तो दौड़ के आता है मेरा शेर। अच्छा, मैंने अपनी बेटी से बात नहीं की कितने दिन हो गए यार, रवलीन को। रवलीन, बोल भाई TCL की फुल फॉर्म। सर ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, अब वेरी गुड। अब मेरा बेटा आएगा। बेटा मेरा कौन सा आएगा? बेटे तो मेरे कितने ही हैं। हिमांशु। हिमांशु नहीं, ईशान को आने दे। ईशान, DCL की फुल फॉर्म बताना यार। Yes. DCL। डाटा कम्युनिकेशन लैंग्वेज। अरे नहीं नहीं, डाटा कम्युनिकेशन ही। एक बार और किसी से पूछ लेने दे एक बार। अमन, अमन ने हैंड रेज किया है। अमन, DCL की फुल फॉर्म बता यार। सर डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। हाँ, बस इतना ही फर्क है, कम्युनिकेशन नहीं आएगा बेटा, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। और सबसे आसान वाली अब पूछने लगा हूं, अगर नहीं बताई तो पिटाई निश्चित है भाई। पिटाई करने वालों में है प्रीत गोगना जी। अनम्यूट करिए और DML की फुल फॉर्म बता दीजिए। सर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अरे वाह, क्या बात है, ये स्मार्ट बच्चे हैं मेरे, स्मार्ट बच्चे। वेरी गुड। चलिए जी, अब अगली कार्रवाई पे आता हूं। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ओके सर, इसमें क्या है, ये हमें क्या अलाउ करता है? कहता है ये DDL जो है वो आपको अलाउ करता है फॉर क्रिएटेड और डाटाबेस टेबल्स टू बी क्रिएटेड एंड डिलीटेड। कहता ओके जी। कहता ये क्या करता है? कहता ये आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसके द्वारा आप लिंक भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और जहां तक मुझे याद हो, अगर मुझे दो टेबल्स में लिंक करना है, दो टेबल्स में लिंक जनरेट करना है, तो हमने एक कॉन्सेप्ट किया था, दैट इज अ प्राइमरी की एंड अ फॉरिजन की। अच्छा, उसके बाद कहता है ये और क्या करता है DDL? कहता है ये क्रिएट करता है, मैनिपुलेट करता है, ऑल्टर करता है, डिलीट करता है। कहता अच्छा, कहता अभी बताता हूँ। कहता क्या बताएगा यार? कहता सर सुन तो लो बात को। कहता सुन लेते हैं भाई, क्यों चिंता कर रहा है। कहता यहाँ पे आ गया क्रिएट डाटाबेस। कहता बिल्कुल ठीक है। कहता उसके बाद यूज डाटाबेस। कहता बिल्कुल ठीक है। कहता उसके बाद क्रिएट टेबल। कहता बिल्कुल ठीक है। कहता ऑल्टर टेबल। कहता बिल्कुल ठीक है। कहता ड्रॉप टेबल। कहता बिल्कुल ठीक है। बातें ही करी जा रहे हो सर आज। कहता एक आधा प्रैक्टिकल भी करवा दो, अब ये एग्जाम्पल तो करवा दो कम से कम प्रैक्टिकल में, वैसे ही तंग कर रखा है आपने हमको। कहता मैं करवा देता हूँ भाई, चिंता मत करिए। और बनमीत जी दोबारा वापसी होगी। अच्छा, कृपया करके अब इधर देखिएगा, जिस चीज को ध्यान से देखना बस एक बार। वैसे हम लोगों ने किया हुआ है ये। सबसे पहला वो होता है कि क्रिएट डाटाबेस। कैसे क्रिएट डाटाबेस करेंगे? मैंने लिखा क्रिएट डाटाबेस, और डाटाबेस में लिखने के बाद आज मैंने लिखा रवलीन मेरी बेटी। मैंने एंटर हिट किया। कहता है क्वेरी ओके हो गई। कहता अब मैंने लिखा शो डाटा बेसिस। मैंने शो डाटा बेसिस करके एंटर हिट किया और मैंने देखा मेरी बेटी यहां आ गई। मेरी बेटी का नाम आ गया, दैट इज अ रवलीन कौर। कहता ये तो हो गया सर। कहता अब क्या करेंगे? कहता यूज रवलीन को यूज करो। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने लिखा यूज RAVLEN, जो मेरी बेटी के नाम पे मैंने डाटाबेस बनाया उसको मैंने यूज कर लिया। मैसेज आ गया, डाटाबेस अमन से रवलीन पे चेंज हो गया। कहता ठीक है। कहता अब क्या करोगे? कहता सर अब एक क्रिएट, बिल्कुल 2 मिनट लगाऊंगा बस, क्रिएट टेबल। मैंने लिखा A1। कहता ओके। अब मैंने लिखा SID इंटीजर। कहता हो गया जी। उसके बाद S नेम मैंने लिखा वेर कैर में मैंने लिखा 20, और मैंने यहाँ पे आके एंटर हिट किया। वो कहता है अरे वाह, उसने बोल दिया टेबल हो गया। मैंने लिखा डिस्क्राइब A1, एंटर हिट करके दिखा दिया कि टेबल क्रिएट। कहता सर एक गलती हो गई। कहता ओहो क्या?
कहता सर यहाँ पे आपने SID और ऐसे नेम ले लिया, सर एक ना SID क्लास लेनी थी, अब ले सकते हैं? कहता ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हो? कहता कौन सी सर? कहता DDL में ना एक ऑप्शन होती है ऑल्टर, कहता अभी कर लेते हैं। मैंने लिखा ऑल्टर। कहता टेबल का नाम क्या रखा था? कहता सर भूल गए। कहता फिर घर जाओ अपने। कहता ऑल्टर टेबल A1। कहता सर आ गए। कहता अब क्या करूं सर? कहता ऑल्टर टेबल A1। कहता अब क्या करूं सर? ऐड करो। कहता ऐड? क्या ऐड करना है सर? एक फील्ड ऐड करना है सर, नाम क्या है? S क्लास। कहता लिख लिया सर। कहता S क्लास के बाद यार ये तो बता दे डाटा टाइप कौन सी है। मैंने बोला सर varchar 20, और 20 के बाद मैंने क्या किया? सेमीकोलन और एंटर हिट कर दिया। कहता उसने लिख दिया ओके क्वेरी। मैंने लिखा DESC A1, और जैसे ही देखा, कृपया करके इस और ध्यान को एकाग्रचित करिएगा, पहले आपके पास जो फील्ड नजर आ रहे थे वो 2 आ रहे थे, अब मेरे बच्चों के पास फील्ड नजर आ रहे हैं, देयर विल बी 3 डिफरेंट फील्ड्स। मेरे बच्चों अब मैंने क्या किया? मैंने लिखा एक वैसे ही, बस एक सेकंड, बस इंसर्ट इनटू, अरे भैया आ जाना, इंसर्ट इनटू A1, here it is our values, number is 1, second is मेरी बेटी रवलीन, और उसके बाद मेरे बच्चे की क्लास है +2, सेमीकोलन एंटर हिट, फिर दोबारा अब मेरी दूसरी बेटी का नाम लिखना है मैंने, उसका नाम है GURLEEN, अरे वाह एंटर। अब कहता सर ये एंटर क्यों किया? कहता दिखाना नहीं ड्रॉप वाला। कहता सर क्या? मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। अब देखना जरा ध्यान से, मेरी बात सुन लेना, अब ध्यान से देखना। मैंने लिखा, अरे वाह, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। अब स्पेलिंग ठीक है? हाँ जी ठीक। मैंने लिखा A1 और मैंने एंटर हिट किया। आप देखो दोनों इन्फॉर्मेशन आ रही है। मेरे बच्चों मेरी बात ध्यान से सुन लेना, डिलीट और ड्रॉप को प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं। मैंने यहां लिखा क्या? मैंने लिखा, सुन लेना, मैंने लिखा डिलीट फ्रॉम। मैंने कोई क्वेरी नहीं लगाई, कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया, सिंपल लिखा डिलीट फ्रॉम A1 सेमीकोलन और एंटर। ये देख लो, पढ़ लो नीचे क्या है। नीचे लिखा आ गया क्वेरी इज ओके, 2 रोज अफेक्टेड। इसका मतलब क्या है? अगर आप मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम A1 और एंटर हिट किया, वो कहता है एम्प्टी सेट, कुछ नहीं है। पर मैंने लिखा डिस्क्राइब A1 और जैसे एंटर हिट किया उसका स्ट्रक्चर अभी भी अवेलेबल है। अब मैंने क्या किया? आई एम जस्ट गोइंग टू एंटर अगेन 2 इंफॉर्मेशंस। मैंने रवलीन की इंफॉर्मेशन डाली और उसके बाद अपनी बेटी की, रवलीन के बाद हमने इंफॉर्मेशन एक और थी गुरलीन जी की, दोनों डाल दी। अब मैंने क्या किया? ध्यान से देखना। अब मैं लिखा ड्रॉप आफ्टर दैट देयर इज अ टेबल एंड हियर इट इज A1, और मैंने जैसे ही यहाँ पे आके एंटर हिट किया, उसने मुझे अब क्या बोला? उसने बोला क्वेरी ओके। अब देखो मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम A1, एंटर हिट किया, उसने मुझे बोला कि डज नॉट एग्जिस्ट, ये टेबल आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता रवलीन डाटाबेस के अंदर। मैंने कहा चल देख लेता हूं एक बार। मैंने लिखा डिस्क्राइब A1 सेमीकोलन, फिर देखो सेम चीज बोली और उसने बोला कि ये टेबल आपका रवलीन डाटाबेस में डिस्क्राइब नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता। मेरे बच्चों जिनको मेरी बात यहां तक समझ आ गई हो, डिलीट और ड्रॉप या बाकी जो हमने सिखाया है, कृपया करके हैंड रेज करने की कृपालता कीजिए फटाफट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि समय जो है वो अंत की ओर जा रहा है, विराम लेने वाला है, तो जिसको अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कृपया करके मुझे बता सकता है।